Hello everyone and welcome back to my channel. Today I'm going to discuss a very important topic which is of oral medicine and radiology. This topic is very important for third year students as well as for the final year students because basically it comes in the final year, but third year students can also have a look on it if they want to make a basics. So this topic named orofacial pain, this topic is from a very famous book for OMR, that is Anil Gooms, and I made a PPT of this chapter for you all so you can have a look on it, because if I make my own notes that would not be sufficient, because some of the topics just are not covered up. So that's why a picture, or you can say a PPT which is from the book, will be nice. So okay, so let's get started to this. Now this, in this first page, there is nothing much written. It is just the introduction part, or it is not something important for us. It is just the things that what is pain, or what is the thing that pain and fear, or fear of pain continues to be the strongest motivation for people to seek dental care. So it's not important, and it's not going to give us any important thing. Just one important thing that is that we should know is that, you can see here also, I'm gonna mark it. Okay, this important thing is that, yes, this toothache. You can see in the second paragraph that most frequent source of orofacial pain is dental disease, and it has been estimated that toothache is a major health problem. तो अगर आपसे कोई ये important चीज़ होती है, अगर आपसे कोई टीचर कोई वाइवा में आपसे पूछ सकता है, मतलब it can be anywhere. It is also related to your general knowledge also, that if somebody asks you that what is the most common, or you can say health problem which is related to this oral facial pain, or you can say the most frequent source of oral facial pain, so you're going to see that you're going to say that it's a dental disease, and most commonly it's a toothache which is responsible for this pain. So this is the important thing here. Okay, after this we have this diagram. It is important. Yes, this diagram is important because here there are these three steps which we should know, that diagnosis of a pain. Okay, so this is important because it also clears our basics also, and there is also a separate chapter which is related to the diagnosis, that how we're going to diagnose. So all the parts are fully described in that chapter, but I'm also giving you a little and you can say introduction part, that how we can diagnose, or what are the steps of diagnosis. So there are three basic steps of diagnosis. First is the history taking, clinical examination, and the knowledge. So these are the basic steps. You can see here: history taking, clinical examination, and knowledge. Like, in the history, what we take, what is history? In the history we record many things. Like, we ask the patient about what is the chief complaint, like आपको सबसे आपका क्या कारण है यहाँ पे डॉक्टर के पास आने का, तो वो आपको बताएंगे कि हमें दर्द हो रहा है इस दांत में, या जो भी है, दैट्स द चीफ कंप्लेंट. उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या साइंस सिम्टम, मतलब हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो या तो आपको बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे इस पे दांत में, या फिर बताएगा कि यहाँ पे सूजन है, जो भी आपको बताएगा दैट सिम्टम्स. और साथ में आप मुझसे पूछते हैं कि भी आप कौन सी मेडिकेशंस खा रहे हैं, पहले से कोई दवाई ले रखी है, समथिंग लाइक दैट. दैट होल थिंग कम्स इन द हिस्ट्री. उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो हम देखते हैं, जो हम साइंस ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हाँ इसको यहाँ पे स्वेलिंग है या नहीं है, जो भी चीज़ है, दैट दैट्स द क्लिनिकल एग्जामिनेशन पार्ट. उसके बाद नॉलेज आता है कि वी शुड हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट कि मतलब कौन सी डिजीज़ हो सकती है ये, जिसके ऐसे साइंस सिम्टम्स होंगे, तो दैट्स द थिंग. तो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ पेन. अ लिटिल intro for the diagnosis, because we have a separate chapter about this. After this, the main thing that we are of use, and we're going to use it in our exams, that is the definition. What is the definition of a pain? So according to International Association for Pain or Study, we have this definition that it is an unpleasant sensory emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of tissue, or described in terms of such damage.
So this thing is the main definition that we are going to write in our papers. Like आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने वाले हैं, जो बीजे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लेती है, तो उसमें अगर आपसे वो अगर पूछते हैं कि डेफिनेशन बताओ पेन की, ओरल फेशियल पेन की, तो दिस IASP definition we are gonna write this. उसके बाद बाकी पॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, बट मेन डेफिनेशन हमको यही लिखनी है. सेकंड पॉइंट अगर आप देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है ओरल फेशियल पेन इज अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री कंसर्न विद प्रिवेंटिंग, इवैल्यूएटिंग, डायग्नोसिंग, treating and rehabilitating pain disorders involving the mouth and face. तो बाकी सारे पॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू राइट. थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ अनप्लीजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस इनिशिएटेड बाय नॉक्शियस स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटेड ओवर स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क. तो ये आपको बताना चाहिए कि स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क होता है. देयर इज स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क, हमने लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, तो हमें पता होना चाहिए. उसके बाद इट इज़ मोर और लेस, फोर्थ पॉइंट में देखें तो इट इज़ मोर और लेस ए सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस और अगानी रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टिमुलेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स. तो कुछ ऐसी नर्व एंडिंग्स होती हैं उनकी स्टिमुलस हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाती हैं वो, और उस वजह से क्या होता है कि एक पेन सेंसेशन जो है वो पास होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचती है. फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ डिस्ट्रेसिंग सेंसेशन इलेक्टेड बाय नॉक्शियस स्टिमुलाई ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन नर्व एंडिंग्स. तो दैट्स द, मतलब थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए, बट दिस होल थिंग इज अबाउट द डेफिनेशन हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ ली. उसके बाद टाइप्स एंड नेचर्स ऑफ पेन आती है, तो इस पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ दिस, ये जो कैटेगरीज बनी हुई हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू पेन इंटेंसिटी और अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज, अकॉर्डिंग टू ऑनसेट, अकॉर्डिंग टू पेन लोकलाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पेन को कैसे क्लासीफाई करें, क्या टाइप्स होती हैं पेन की, ऐसा क्वेश्चन उठ के आ सकता है या वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, तब आप इस चीज़ को बता सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू पेन इंटेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन. और साथ में ये भी बता रखा है कि जो माइल्ड वाला पेन होता है उसमें हम सिंपल एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और जो मॉडरेट वाला होता है उसमें हम नारकोटिक एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं. जो सीवियर वाला होता है उसमें हम एनाल्जेसिक्स यूज़ नहीं करते. सीवियर पेन में हम कुछ ऐसी नहीं लेते हैं. सीवियर पेन में हम बस यही ट्राई करते हैं कि जिस वजह से वो हो रहा है, और मतलब हम उस चीज़ को रोक सकें जिस वजह से वो हो रहा है. So this is the classification of pain according to its intensity. Now according to temporal relationship and duration. तो यहाँ पे 7 कैटेगरीज दी हुई हैं, 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट का क्या मतलब होता है? इंटरमिटेंट का क्या मतलब है? दैट पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सेपरेटेड बाय wholly पेन फ्री पीरियड. वन सेकेंड, आई एम गोइंग टू रोटेट इट ताकि आपको बेटर दिखे. हाँ, नो इट्स ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल रिलेशनशिप ड्यूरेशन के साथ इंटरमिटेंट इज पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का पेन हो और उसके बाद एक पीरियड हो जिसमें पेन नहीं हो रहा, मतलब एक पीरियड में पेन चल रहा है, फिर वो रुक जाता है, फिर काफ़ी टाइम तक नहीं होता, फिर दोबारा चलता है, तो वो हम कहते हैं इंटरमिटेंट. दूसरा आता है कॉन्टिन्यूस टाइप का पेन, जिसमें पेन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है, जैसे कि किसी को 1 दिन 2 दिन तक पेन चलता रहा, रुका नहीं बीच में, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस. उसके बाद आता है प्रोट्रैक्टेड. प्रोट्रैक्टेड क्या होता है? ए पेनफुल एपिसोड दैट लास्ट फॉर सेवरल डेज इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज प्रोट्रैक्टेड. जब बहुत सेवरल डेज तक चलता रहे तो उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टेड. नेक्स्ट इज इंट्रैक्टेबल. इंट्रैक्टेबल पेन दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी थेरेपी. अगर आपकी कोई भी थेरेपी है, अगर उस थेरेपी से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक इंट्रैक्टेबल पेन है. रीअकरेंट का क्या मतलब होता है कि 2 और मोर सिमिलर एपिसोड्स ऑफ पेन, मतलब एक बार हुआ, फिर एक बार और हुआ, मतलब 2-3 एपिसोड सेम पेन के, उतनी इंटेंसिटी का पेन जब आपको 2-3 बार हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो बार बार हो रहा है, रीकरेंट हो रहा है. रीएमिशन का क्या मतलब है? रीएमिशन का क्या मतलब होता है? रीएमिशन, द पेन फ्री इंटरवल बिटवीन रीअकरिंग एपिसोड्स इज कॉल्ड एज रीएमिशन. रीएमिशन क्या होता है? एक इंटरवल होता है, पेन फ्री इंटरवल को हम रीएमिशन कहते हैं. मतलब
एक बार पेन हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा हो, जो गैप है जिसमें नहीं हुआ, दैट इज रीएमिशन. नेक्स्ट इज पीरियोडिक. द पेन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय रेगुलरली रीअकरिंग एपिसोड्स इज सेड टू बी पीरियोडिक. बहुत बार रेगुलरली रीअकरिंग एपिसोड्स हो रहे हैं, तो दैट इज पीरियोडिक वन. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ऑफ पेन. अब पेन की क्वालिटीज होती हैं बहुत, मतलब अगर आपसे कोई पूछे वाइवा में कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पेन, तो तब आपको ये सब चीज़ें बतानी है. काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे. पहले हम देखते हैं स्टेडी पेन क्या होता है. इट इट फॉलोज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन, दैट इज अ स्टेडी पेन. आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इट फॉलोज अ अनस्टेडी. नेक्स्ट इज पैरोक्सिमल पेन. पैरोक्सिमल का क्या मतलब होता है? सडन अटैक और आउटबर्स्ट. एकदम से अगर पेन हो जाता है तो हम उसे कहेंगे कि ये पैरोक्सिमल पेन है. ब्राइट पेन, स्टिमुलेटिंग क्वालिटी होती है इसकी, स्टिमुलेटिंग, दैट इज ब्राइट पेन. डल पेन किसको कहते हैं? इट हैज़ गॉट अ डिप्रेसिंग क्वालिटी, मतलब थोड़ा सा डल सा है. डल सा मतलब डिप्रेसिंग सी क्वालिटी है इसकी, ज़्यादा नहीं है. दैट इज डल पेन. इचिंग का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ सब थ्रेशोल्ड पेन एंड usually is not described as pain at all. It may have a warm or even burning quality and can become intractable. तो intractable क्या पढ़ा था हमने? जो किसी भी थेरेपी से नहीं ठीक होता, दैट इज इंट्रैक्टेबल. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी. हाँ, दैट इज नॉट, दैट डजंट रिस्पॉन्ड टू एनी थेरेपी. तो वही चीज़ है यहाँ पे. प्रिकिंग की बात करें तो इट्स अ शार्प इंटरमिटेंट करेक्टर. और इचिंग था, तो इचिंग क्या होता है? एक इंट्रैक्टेबल टाइप का बन सकता है, और इसको हम पेन नहीं कहते. ये एक सब थ्रेशोल्ड पेन होता है जिसको हम टोटली पेन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और इसमें वार्म और बर्निंग सी क्वालिटी होती है. फिर आता है प्रिकिंग टाइप का पेन. इट हैज़ अ शार्प इंटरमीडिएट करेक्टर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक अ पिन प्रिकिंग द स्किन. काफ़ी छोटे टाइम के लिए होता है और ऐसे लगता है जैसे कोई प्रिक कर रहा है स्किन को. स्टिंगिंग टाइप का क्या होता है? इट इज़ मोर कॉन्टीन्यूस ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड क्वालिटी. काफ़ी कॉन्टीन्यूस होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है और हाई इंटेंसिटी का होता है. बर्निंग क्या होता है? इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ और हीट व्हेन शॉर्ट एंड इंटेंस. इट मे हैव इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग. ठीक है, मतलब थोड़ा सा वार्मथ की फील जब आती है, जब कम देर के लिए होता है, और इंटेंस तो मतलब द इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग, दैट इज़ अ बर्निंग टाइप. हम इन सभी टाइप्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. फिर आता है थ्रॉबिंग टाइप का पेन, दैट इज पल्सेटाइल पेन. इस टाइम टू कार्डिक सिस्टम, जो कार्डिक सिस्टम में एक पर्सेटाइल टाइप का पेन होता है, उसको हम थ्रॉबिंग पेन कहते हैं. तो थ्रॉबिंग वर्ड हम बेसिकली कार्डियक पेन के लिए यूज़ करते हैं. ईचिंग टाइप का पेन, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टर्म most frequently used unless the pain is overshadowed by one of the other characteristic sensations. So these are the, ये सारी हमारी क्वालिटीज ऑफ पेन थी. अब हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑनसेट के हिसाब से. ऑनसेट के हिसाब से तीन ही चीज़ें हैं: स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड और ट्रिगर. स्पॉन्टेनियस का मतलब जब अकर्स विदाउट बीइंग प्रोवोक्ड, मतलब किसी चीज़ से प्रोवोक नहीं हुआ, चलता जा रहा है चलता जा रहा है. इंड्यूस का क्या मतलब होता है? व्हेन सम प्रोवोकेशन कॉजेज अ पेनफुल सेंसेशन. और ट्रिगर्ड का क्या मतलब होता है? व्हेन इवोक्ड रिस्पॉन्स इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द स्टिमुलस. तो ये तीन चीज़ें ऑनसेट के हिसाब से होती हैं कि कैसे शुरू हुआ पेन. फिर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पेन लोकलाइजेशन. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये बहुत बार वाइवा में भी पूछते हैं और कई बार उसका मतलब यूज़ करते हैं हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में. लोकलाइज टाइप का पेन क्या होता है? इफ अ पेशेंट इज एबल टू क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिफाइन द पेन टू एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन, मतलब आपको पता है कि एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर पेन हो रहा है, दैट इज लोकलाइज. डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब आप जब एग्जैक्टली ना बता पाएंगे इस जगह हो रहा है. It is less well defined and somewhat vague and variable anatomically. इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जब किसी को कोई मतलब जल जाता है, कहीं पे बर्न हो जाता है, तो उस टाइम जब आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ बर्न ऑल लगाते हैं, आप कोई भी लगाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हम कहाँ लगा रहे हैं. दर्द कहीं और होता है और आपको देखने में कहीं और लगता है. तो आप वो वाला भी देख सकते हैं एग्जाम्पल डिफ्यूज़ में. फिर आता है रेडिएटिंग. रेडिएटिंग में क्या होता है कि रैपिडली चेंजिंग पेन होता है, चेंज होता रहता है, रेडिएट करता रहता है. रैपिडली चेंजिंग, जब रैपिडली चेंज होता है पेन तो वो रेडिएटिंग होता है. इसी में एक पार्ट आता है, आप लेंसिनेटिंग के बाद देखिए स्प्रेडिंग वाला. स्प्रेडिंग वाला जो है ना, वो ग्रेजुअल चेंजिंग पेन है. जब ग्रेजुअली पेन चेंज हो तब स्प्रेडिंग कैटेगरी में आता है वो.
जब रैपिडली चेंजिंग होता है वो रेडिएटिंग में आता है। फिर आता है लैंसिनेटिंग। लैंसिनेटिंग ए मोमेंट्री कटिंग एग्जैबरेशन, दैट इज ए मोमेंट्री कटिंग एग्जैबरेशन, दैट इज लैंसिनेटिंग। फिर आता है हमारे पास एनलार्जिंग। एनलार्जिंग, if a paint progressively involves adjacent anatomical areas, it is enlarging. जब आसपास के एरियाज को भी इन्वॉल्व करने लग जाए, if the paint progressively involves, that is enlarging. और migrating, if it changes from one location to other and the paint is described migrating. Migrating जब एक जगह one location से another location पे जाता है, that is migrating. Enlarging जब adjacent anatomical areas में है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास इसकी हो गई। उसके बाद है न्यूरो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ पेन। इसमें कुछ खास नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं अंदर, ये सारी के हम सब कुछ लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर, नोड्स एंड न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, सिनेप्टिक जंक्शंस, रिफ्लेक्स, इसका भी कोई यूज़ नहीं है हमारे में। बस डायग्राम आप देख सकते हो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो है ना, ये जो है एपिन्यूरियम और दिस सॉरी एपिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम और पेरीन्यूरियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, तो आप उसमें से देख लीजिए। हियर इट कम्स, यू कैन सी दिस बॉक्स। इसमें आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखिए। कनेक्टिव टिश्यू शीथ encloses bundle of nerve fibers called epineurium. Each bundle is surrounded by its own connective tissue sheath, that is perineurium. मतलब क्या है कि बहुत से nerve fibers को एक इनक्लोज करते हैं तो एपिन्यूरियम में आते हैं। उससे जब एपिन्यूरियम में से जो बंडल्स अगर हम निकालते हैं, उन बंडल के आसपास जो शीत होती है वो पेरिन्यूरियम होती है। और फिर आता है ईच बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज सेपरेटेड बाय इंटरस्टेशियल कनेक्ट। फिर क्या होता है कि हमारे जो बंडल्स हमने निकाले जिनके आसपास पेरिन्यूरियम थी, उस बंडल के अंदर फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स के एक फाइबर, उसमें से एक फाइबर अगर आप लोगे तो उसके आसपास जो शीत है वो हो गई आपकी एंडोन्यूरियम। तो सीक्वेंस कैसे चलता है, सबसे बाहर होती है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम में बहुत सारे बंडल्स होते हैं, उसमें से एक बंडल निकालोगे, उस बंडल के आसपास होगी पेरिन्यूरियम। और उस बंडल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उसमें से एक फाइबर निकालोगे, उसके आसपास होगी एंडोन्यूरियम। सो दैट्स द थिंग। फिर टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टाइप ऑफ नर्व सेल्स, ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, और डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन, एफ्रिन न्यूरॉन, ईफ्रिन न्यूरॉन, ये सब ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। सेंसरी रिसेप्टर्स, एक्सट्रोसेप्टर्स, इंट्रोसेप्टर्स, ये सब चीज़ें आप अपनी वैसे नॉलेज लिए देख सकते हैं, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ आपको पेपर में नहीं देगी। ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा बेसिक क्लियर होने के लिए आप पेन कंडक्शन थोड़ा पढ़ सकते हैं, अगर आपने पहले ना पढ़ा कि पेन कंडक्शन कैसे होती है। इसमें एक चार्ट बना हुआ है छोटा सा पेन कंडक्शन में, कि पहले रेस्टिंग फेज होती है, फिर डीपोलराइजेशन होती है, फिर रिपोलराइजेशन आती है। पहले पढ़ चुके हैं 11th में कि कैसे होता है, कैसे सोडियम और कैसे सोडियम का अंदर बाहर होता रहता है इसमें। सो दिस आल्सो डन इन आवर लोअर क्लासेस, resting phase, repolarization. I don't think ये हमारे साथ time हो गया। So let's come to the main thing. लेकिन इस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, दैट इज थ्योरीज ऑफ पेन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो गेट कंट्रोल थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में बहुत पूछ जाती है। सो दिस थिंग आई एम गोना कवर इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। So I'll meet you in the next video in which I'm going to cover theories of pain. Thank you.